Shifting our focus to West Bengal and the protest that now ensues over the teachers' recruitment scam. Several teachers now out on the streets to protest. A fresh wave of agitation has erupted in Kolkata, this time not just over loss of jobs but loss of dignity. Today, a group of dismissed school teachers began a relay hunger strike outside the West Bengal School Service Commission, the office in Salt Lake. Their lives, they say, have come to a grinding halt after the Supreme Court held the cancellation of over 25,000 appointments earlier this month, calling the recruitment process deeply tainted. Adding fuel to their anger, Wednesday's police crackdown in Kasba. Several teachers alleged they were lathi charged, they were shoved, kicked. While protesting peacefully at the district inspector's school's office, they were heckled and harassed by the cops. That's what they claim. Joining the sit-in protest was BJP MP and former Kolkata High Court Judge Abhijit Gandopadhyay, the very man who in 2021 ordered a CBI probe into the same recruitment scam, the school recruitment scam. He blamed the government for failing its teachers, saying that cases have been filed against innocent educators, whose only fault was getting caught in this corrupt system. Gangopadhyay even skipped a scheduled meeting with Education Minister Bratya Basu, calling it a mark of protest against the police's action of lathi charge on peaceful protesters. Now, many teachers say that they've spent years preparing, teaching, building careers, only to finally watch it all crumble. They feel abandoned by the system, the commission and now the state. While arrests have been made, including that of the former Education Minister Partha Chatterjee, the wound is of course still fresh. All these teachers who are protesting have lost their jobs. Many of them saying now their self-respect has now been hit because they weren't part of the scam but they got caught in this crossfire. The hunger strike, that's just the beginning. These teachers say that they'll continue until justice is served or until silence is finally heard. अभी देखना है कि बंगाल के लोग हैं इसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से लेते हैं इसको, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये होना कोई नई चीज नहीं है इस स्टेट में, ये होना तो नहीं चाहिए था ना। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, एक महीने में नहीं हुआ है, एक साल में नहीं हुआ, ये सालों से चल रहा है। पूरा माइंड सेट करके प्लान करके ये हुआ है और किसी को कुछ नहीं पता। इतने सालों से ये सब चल रहा, किसी को कुछ नहीं पता। इसके लिए दायी सिर्फ ये सरकार है और ये सरकार है। देखिए, पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत काला दिन है और इस काला दिन के लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी है। उन्होंने और उनकी पार्टी के लोगों ने चोरी किया है और उस चोरी की वजह से इन शिक्षकों की नौकरी चली गई है। कितने लोग इसके द्वारा प्रभावित हुए हैं और जिस तरीके से घटना घटी है और पुलिस का जो रवैया है वो रवैया एकदम सही नहीं है। हर लाठी हर लाथी यानी लात और हर अत्याचार का हिसाब डायरी में लिखा रह रहा है। सबका हिसाब हम चुकता करेंगे। बीजेपी की सरकार बनेगी और इनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप लोग जानते हैं 3 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि 26,000 टीचरों का नौकरी बातिल किया जाता है। इसके विरोध में हम लोग आज डीआई ऑफिस घेराव और डीआई ऑफिस का गेट पे ताला जड़ने के लिए आए। बहुत सारा प्रॉब्लम है, हम सिर्फ अकेला नहीं, मेरे यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। किसी का लोन चल रहा है, किसी का ईएमआई चल रहा है, किसी के माता पिता बीमार है, उनका घर कैसे चलेगा, ये सोचनी है बात। राज्य सरकार का अभी कहना है कि आप लोग वॉलंटियरी सर्विस करें, वो हम लोग नहीं मानेंगे क्योंकि हम लोग सटीक तरीके से एग्ज़ाम दे के, इंटरव्यू दे के, एवरी टाइप ऑफ वेरिफिकेशन पार करके हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो इसीलिए हम वॉलंटियर सर्विस के लिए हम लोग राजी नहीं है क्योंकि इससे हम लोग का नहीं चलेगा। हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, ये अन्याय नहीं सहा जाएगा। हम लोग योग्य टीचर है और हम लोग को वापस चाहिए, नौकरी चाहिए। हम लोग को पूर्ण रूप से नौकरी चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हम लोग को नौकरी नहीं चाहिए। और हम लोग एग्जाम भी नहीं देंगे। हम लोगों का फ्रेश रिक्रूटमेंट पहले से हुआ है। हम लोग एक बार नहीं 5-5 बार डीआई ऑफिस में आ करके हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। इसके बाद भी ये क्यों किया जा रहा है, क्यों हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है? हम लोग यहाँ पर प्रतिवाद करने आए हैं। एग्जैक्टली हमारा अधिकार छीना गया है। हमारी कोई गलती नहीं है और किसी भी लिस्ट में हमारी कोई गलती नहीं पाई गई है, फिर भी हमारी नौकरी को छीन लिया गया है। तो हम यहाँ प्रतिवाद जनाने आए हैं कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको अलग किया जाए और जो सही कैंडिडेट्स हैं उनका अलग लिस्ट प्रकाशित किया जाए और हमारी नौकरियों को वापस किया जाए। हम यहाँ पर निर्दोष होने के बावजूद भी सजा भुगत रहे हैं।